प्रार्थना। बस ऐसा पण दिसणार नाही, दिसणार नाही आहे. भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। So we are on page number 111 and yesterday we were talking about knowing without the knower. तो ये जो दृष्टा है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ब्रह्मण है वो हर चीज पे सब कुछ चलाता है. Okay, you go through the drama of life, the pain and the pleasure. There may be perturbance, disturbance at the sensual level. You are a witness to that. You do not get victimized by it. Klesha Mukti Kaivalyam. The Yoga Sutras have taught you that the state of yoga is the end of psychological misery and suffering. So immortality, eternity is a state where there is no suffering. तो ये जो हम रुकते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या अमुक जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी या तो हमारा कर्म खत्म होने के बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं. अगर इस जन्म में अब भी आज एक क्षण में अगर तुम दुख से शून्य हो तो तुम मुक्त हो. Then you are in the present, because all pain, all misery, all suffering comes either the past or the future. या तो भूतकाल की कोई यादें या तो भविष्य काल की कोई बातें या चिंता, इससे हम दुख में होते हैं. अगर दुख नहीं है, तुम प्रेजेंट में हो तो दुख नहीं है तो तुम मुक्त हो. और यही तो ब्रह्मांड से जुड़ने का क्षण है. बस ये ख्याल रहे कि वो ब्रह्मांड जहां से मैं आई हूं वो परब्रह्म परमात्मा है. So please do not attach the word immortality to something that happens after death. Though the body is born, the body is to drop someday. In what you call death, life knows no death. ये आखिरी सेंटेंस कल हमने पढ़ा था. Life knows no dying. It is an internal dance of infinite, innumerable energy. सारी शक्तियों का नृत्य है. उसका एक मूवमेंट है, एक वृत्ति है, गति है. लेकिन जिंदगी को मृत्यु कभी नहीं हो सकती. जिंदगी न पैदा हुई थी न मर सकती है, इटर्नल है. अब आगे का पढ़ती हूँ. सो प्रतिबोध विदितम मतम ही अमृतत्वम विन्दते. The immortality is attained, is arrived at, is felt, is realized when there is pratibodham viditam. जब भी बोध हो जाए, जब भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तब भी तुम अमरत्व अनंत इसमें हो. राइट? You have the understanding at every stage of consciousness. You have the understanding at every state of consciousness. In every state of consciousness, the communion is not snap. There is a spontaneous, effortless. So there is a spontaneous, effortless communion with the source of your own being, and therefore this drama of becoming, the play of becoming that has to take place at the physical and the psychological level. You become a husband, a wife, a father, a mother, a brother, a sister. You become a lawyer, a doctor, a teacher. All this process of becoming that has to be gone through at the psychophysical level does not deprive you of the splendor, of the majesty of remaining without any becoming. हर वक्त, हर क्षण जो भी हम जिंदगी में रोल निभा रहे हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी कहानी है हमारी, हम हर वक्त ब्रह्मांड के ख्याल में तो रह ही सकते हैं. इनमें से कोई चीजें हमें वंचित नहीं रख सकती कि भाई हम नहीं जुड़ सकते. हम हर वक्त, हर क्षण, कोई भी भावनाएं मन में चलती हो, कोई भी विचार दिमाग में होने दो, कुछ भी होने दो, जो भी whatever is happening, we can still always
keep feeling the presence of Brahman within us. Yeah, that's the point. Now, through communion with the substance, remaining at the source of being, the beingness, तो कहाँ रहना है मैंने, कहाँ रहना है मैंने अपने साथ रहना। कल एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि अपने साथ रहने से क्या होगा। अगर खुद के साथ रहोगे तो संबंध खुद के साथ रखोगे तो संवाद होगा, डायलॉग होगा। यू विल टॉक टू योर सेल्फ। इफ यू टॉक टू योर सेल्फ दैट मीन्स यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। उसमें से बॉन्डिंग होगा और बॉन्डिंग में से प्रेम होगा। एंड व्हेन दिस थिंग वाज डिस्कस यस्टरडे इवनिंग, मेरे दिमाग में यही थॉट आया, हाउ इजी इट इज टू लव योरसेल्फ। If you really, really love yourself, if you want to love yourself, if you feel that you are not loving yourself, all you need to do is give yourself time. Not the family, not the society, nothing. Just be with yourself. Give yourself time. If you are with yourself, then you are going to experience love for yourself. Yeah. So basically, we need to spend more time with ourselves, and we can always be with ourselves. We can be with ourselves 24/7. Why not? Yeah. But so that is what she's saying over here. Always, everything you are saying what you need to say, you are doing what जो करना है कर रहे हो, जो बोलना है बोल रहे हो, जो सुनना है सुन रहे हो, जो भी तुम्हारी भूमिकाएं हैं वो सारे तुम निभा रहे हो। और ये सब होते हुए तुम कहाँ हो? खुद के साथ। Where are you? You are with yourself, right? अस्मिता ताई, अस्मिता। केलो. You are with yourself. So remaining at the source of your being, the beingness does not get affected by any state of consciousness. कोई भी हमारी चित्त भूमि हो, चित्त भूमि मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र कुछ भी होने दो, लेकिन हम वो सारी चित्त में हलचल जब चल रहे हैं, हम कहाँ हैं? हम खुद के साथ। All the time we are with ourselves. By any psychophysical activity, that is called immortality. अगर तुम खुद के साथ हो, जो भी हलचल हो रही है होने दो। तुम कहाँ बैठे हो? अंदर बैठे हो, राइट? वो आत्मा बैठा, उसके साथ हो तुम। अगर वो ऐसा है तो तुम अमर हो। दैट इज इमोर्टैलिटी। प्रतिबोध विदितम मतम ही अमृतम विदिते। एंड हाउ डज दिस दैट हैपन? और ये किस तरह से होगा? दिस इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग। यही तो जिंदगी का विज्ञान है, यही तो जीव और जीवन, ये दोनों का विज्ञान है। सो द ऋषि, the teacher, after having made this statement, this communication, now in the second part of the mantra, refers to the explanation, shows the path, indicates the direction to his students, to his pupils. पहले तो गुरुजी ने कह दिया कि भाई जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम खुद के साथ हमेशा रह सकते हो। अब कैसे रहे? आगे के मंत्र के दूसरे भाग में वो कह रहे हैं, आत्मना विंदिते वीर्यम आत्मना। By your beingness, by the source of your life, by the substance, the essence of your life, the Brahman, the divinity, which is your being, the supreme energy of intelligence, which is your nature. Intelligence is the nature of life. Eternity, divinity, infinity, immeasurableness, unnameableness, that is the nature of life. So Atmana means by the substance. तो आत्मा क्या है? कोई चीज वस्तु है? कोई रूप रंग वाला चीज है? एक्चुअली नाम भी नहीं है, हमने उसको नाम दिया है आत्मा, बिकॉज कुछ तो बुलाना पड़ेगा ना, वरना हम एक दूसरे को किसके बारे में बात कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा, राइट? कुछ तो नाम देना है, इसलिए हम जो है द एसेंस ऑफ अवर बीइंग, द एसेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ, वी कॉल इट द आत्मा। उसको नाम दिया है हमने आत्मा।
और ये जो आत्मा है, यही तो हमारा सार है, हमारा एसेंस है. That is the Atmana means the substance. Where there is awareness of the substance, when there is communion with that substance, vindate viryam. Okay? अगर तुम एसेंस के साथ हो, सजगता. हेलो, हु आर यू? मैं आत्मा हूं. तो फिर मैं कौन हूं? अब भी तो आत्मा हो. Yeah. How many times do we think of ourselves as आत्मा? हम खुद के बारे में जब सोचते हैं, तब हम हमारे अलग अलग रोल्स, हमारे के हिसाब से हम सोचते हैं, हमारे नाम के हिसाब से सोचते हैं, हमारे काम के हिसाब से सोचते हैं. हम खुद को ही देखते वक्त ये जो हमारे रूप रंग गुण जो है, इनके हिसाब से हम खुद को देखते हैं, मन ही मन में भी. लेकिन मैं एक आत्मा हूँ. ये ना दिखता है, ना महसूस होता है. You don't feel like you are an atma. I very much feel that I am a woman. I very much feel that I am आरती. मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं आरती. हाँ, कि और किसी और को बुला रहे कि I don't need to look around here and there. Everything I feel all those things, but I am the atma. I don't feel. क्यों नहीं फील होता? मेरे हिसाब से निर्गुण निराकार है, उसको फील करना बहुत मुश्किल. फिर क्या करूं? फिर मैंने जप शुरू किया, अहम ब्रह्मास्मि. और वो जप करते करते उसके वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस. अब कभी कभार मेडिटेशन में एहसास हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ. Doesn't happen always, not as often as I would like to, but it's a beginning. It's a beginning, right? So this is what she's saying over here, कि वो जो आत्मना है, वही तो मैं हूँ, वही तो सब्सटेंस है. आपण म्हणतो ना फळाचं घर. कोई फ्रूट है, तो फ्रूट क्या छिलका वो फ्रूट है? अगर तुम एप्पल को एप्पल कहते हो, तो एप्पल का छिलका को एप्पल कह रहे हो? किसको एप्पल कह रहे हो? उसके अंदर का जो गर है, उसको एप्पल कर रहे हो. द पल्प, द फाइबर, that is what is the apple, right? So that is the substance of that fruit. That is the one which gives you taste, right? Taste of an apple comes from that pulp of the apple, and not only from the skin or whatever. You get my point. So atmana means by the substance. When there is awareness of the substance, when there is communion with that substance, vindate viryam. अब विंदते वीर्यम बोल दिया, लेकिन इस शब्द को भी समझते हैं. द वर्ड वीर्यम इज वेरी सिग्निफिकेंट. बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये. Most of the translators and commentators have translated it by the word strength. बहुत ट्रांसलेटर्स ने है ना शक्ति ऐसा उसका ये दिया है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में उसका मीनिंग दिया है. स्ट्रेंथ उन्होंने बोला, वीर्य बोला तो स्ट्रेंथ, ऐसा उन्होंने बोला. फ्रेंड्स, आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर एक बात. सो क्या होता है कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुजन हैं कि जिन्होंने यही विषय पे काफी सारे बातें लिखी और बोली है. तो मैं उनकी भी बातें सुनती हूँ. ये विमला जी का पर्सपेक्टिव, हम लोग विमला जी का दृष्टिकोण, उनका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये मेरा नहीं है. वो लोग जो बोल रहे हैं वो उनका है, विमला जी जो बोल रही है वो उनका है. लेकिन जब विमला जी ने 2-4 बार, हमने भगवत गीता में भी, इनसाइट्स इनटू में भी हमने ये पढ़ा कि ये वाला पर्सपेक्टिव तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद ने, बड़े बड़े भाष्यकार है जैसे चिन्मयानंद है या ओशो है या अपने शंकराचार्य है, इन्होंने उनके बहुत सारे ऑलरेडी अभ्यास किया. कभी किया? जब वो कॉलेज में थी, क्योंकि उनके विषय ही यही थे, इंडियन साइंसेस. तो उन्होंने अभ्यास किया. फिर बाद में बहुत अब और चिंतन मनन किया. फिर एक एक मंत्र को लेके मेडिटेशन में वो गई, और वो मेडिटेशन में वो चिंतन, डीप चिंतन मनन में जो उनको समझा, वो उन्होंने इनको बताया है. और ये मतलब उनके स्टूडेंट्स को बताया है,
वो स्टूडेंट्स ने प्रिंट में डाला और हम उसको सुन रहे। I completely agree to her now because हुआ क्या, बहुत बड़े गुरु है आज के जमाने के, मानती हूँ मैं बहुत हूँ। फिर भी देखो पर्सपेक्टिव्स में डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं। और शंकराचार्य इन्होंने उपनिषद पे भाष्य लिखे हैं, पहले महाभाष्य सारे लिखे उन्होंने। तो ज्यादातर लोग जो भी कुछ बात करते हैं ना, तो शंकराचार्य जो बोले वही उनका समझा के देते हैं। जैसे मैं ये विमला जी को समझा देती हूँ, वैसे वो शंकराचार्य क्या बोले वो समझाते हैं। अब सहना वतु सहनौ भुनक्तु जो प्रार्थना है, इसका मतलब हमने इस विमला जी ने हमें जो दिया वो हमने पढ़ा। मे गॉड प्रोटेक्ट अस, मे गॉड सहना वतु सहनौ भुनक्तु, मे गॉड प्रोटेक्ट अस। तो उन्होंने क्या बोला है, मे गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अविद्या, from misunderstanding what is being said in the Ved. सामवेद पढ़ रहे हैं ना, तो वेद में जो बोला गया है या उपनिषद में जो बोला गया है, इसमें हम कोई गैर समझ ना करें, और जो बोला गया है उसको हम समझे। सनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै, तो वो जो जैसा हमें सत्य हमें दिखने दो, ये उन्होंने मीनिंग दिया है। लेट अस सी द ट्रुथ, मे द यूनिवर्स, मे द गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गोइंग हेवायर एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट लुकिंग एट द ट्रुथ। याद है आपको? याद है फर्स्ट क्लास में, पहले क्लास में हमने प्रार्थना जब सुनी, और इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग यस्टरडे कि ये जो गुरुजन थे वो सहना भुनक्तु तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, उन्होंने क्या कहा। देखो उस जमाने में गुरु और शिष्य जंगल में रहते थे, और वहां पे वाइल्ड एनिमल्स, धूप छांव, राक्षस, हम सब जानते हैं ना कि ऋषियों को राक्षस बहुत, जो राक्षस प्रजाति थी ये उनको बहुत सताती थी। राम राम को विश्वामित्र ले गए प्रोटेक्शन के लिए मिले। तो ये सारी चीजों से हमें भगवान बचाए रखे, ये उन्होंने मीनिंग दिया। इट्स नॉट रॉन्ग, it's not wrong. I'm not talking about wrong, right or wrong, or who is better. No, that is not my intention. What I'm trying to tell you is that there is a perspective to it. ये भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत डीप पर्सपेक्टिव है, लेकिन उस पर हमारा खुद का, जैसे हमने माय गीता के बारे में बात की ना, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग, गीता जिसको जो समझती है उसकी वो गीता बन जाती है। तो माय गीता हर एक की अपनी अपनी। Yeah. So friends, do read on different bhashyas, different commentaries, and do read up on, what people are saying about different prayers and where is it coming from and what are the interpretations. And you will find that there are so many interpretations to it. So there is one perspective which is physical perspective. There will be another perspective which will be the mental perspective. Then there will be another perspective which will be the intellectual perspective. And then there will be one perspective which is the Atmic perspective, which comes from the soul. विमला जी बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि ये थ्रू एंड थ्रू आत्मा के लेवल पे बात करती है, और आत्मा ही खुद इतना एब्स्ट्रैक्ट है जिसको न रूप रंग गुण कुछ भी नहीं है, नो क्वालिटीज, नो शेप, नो फॉर्म, नो साइज, नो कलर. So it's difficult to grasp. All right. So we have to understand what she is trying to say. Then we have to think upon it, contemplate on it, meditate on it, and then only we will be able to digest. All right. बहुत हो गया मेरा कहना, अब इनका कहना पढ़ते हैं. The word Viriam is very significant. Most of the translators and commentators have translated it by the word strength, but that does not satisfy your friend Vimla. Through the penetrations, explorations and experimentations in her life, मैं हर चीज में बहुत डूबी हूँ, बहुत मैंने एक्सप्लोरिंग किया है, बहुत मेरी जिंदगी में मैंने एक्सपेरिमेंटेशन किया है, एंड she has found out that the word Viriam means
वाइटैलिटी। अब स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी में आसमान जमीन का फर्क। अगर इंग्लिश मीनिंग्स भी आप देख लो ना, तो भी आपको ध्यान में आएगा कि स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी में आसमान जमीन का फर्क है। देयर कैन बी फिजिकल स्ट्रेंथ, देयर कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन, मेंटल स्ट्रेंथ, देयर कैन बी स्ट्रेंथ डिवोशन विच इज एक्सक्लूसिव अटैचमेंट टू एन ऑब्जेक्ट, है ना, भक्ति का की शक्ति। सो वो शक्ति हो सकती है। The rishi, the teacher, is not referring to that kind of strength which is produced by any effort of the brain. Intellectual conviction is born of a cerebral effort. दिमाग से जो तुम निकालते हो उसको, वहां से वो शक्ति है। ये मानसिक शक्ति है। हम ना शारीरिक शक्ति की बात कर रहे हैं। जब वीर्यम ये शब्द हम का उपयोग किया गया है, तो वो ना मानसिक शक्ति है, ना शारीरिक शक्ति है। Devotion or exclusive attachment to an object, to an individual, to a code of conduct, to a code of values, etc., that is the result of an emotional movement and effort. भक्ति को भी हम वीर्य नहीं बोल सकते, क्योंकि भक्ति में किसी व्यक्ति, किसी विषय या किसी आइडिया या किसी व्यवहार, किसी एक चीज से, भावनाओं से हम जुड़े हुए होते हैं। भक्ति में क्या है इन्वॉल्व? भावना, इमोशनल मूवमेंट होती है, भावनिक अटैचमेंट होता है हमारा, इमोशनल अटैचमेंट। और एफर्ट भी उस हिसाब से होता है। एफर्ट क्या है? भक्ति में जिनके साथ हम जुड़े हैं, हम उनका नाम स्मरण, कंटिन्यूसली उनकी यादें, कंटिन्यूसली उनके थॉट, हाँ, ये सारे लेवल पे विचार, all the stages of samadhi, yeah, that we learned in Patanjali Yoga Sutra. So all of that, we are all the time in that state. All right. So the viryam, the vitality, is not produced through any or by any psychophysical effort. Bhakti में प्रयास है, ज्ञान में भी प्रयास है, एफर्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे हम कोई एफर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। द वाइटैलिटी इज दैट emerges आउट ऑफ अवेयरनेस। किसी भी चीज को अगर हमने सुन ली और अगर हमें वो समझ गई, तो हम हर वक्त उसकी सजगता में रहते हैं। और उस सजगता से जो उभरता है वो है वीर्यम। Is it clear what I just said? Yeah. Anything that we give our attention to, our energy to, we are in awareness of it. What comes out of it, the result of that awareness is vitality. अब सोचो, अगर आप सजग हो गए अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये भावनाएं मेरी, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं हूँ कौन? मैं तो वो लाइट हूँ, मैं तो वो चैतन्य हूँ, वो दिव्य शक्ति हूँ। when वो जब उतर जाता है और हर वक्त उसकी सजगता में जब हम रहते हैं, सोचो आप कैसे होगे? कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी डिप्रेस्ड, कभी बोर्ड, ऐसे होंगे? बिल्कुल नहीं। हाउ डू यू फील व्हेन यू से दैट आई एम द लाइट? हाउ डज अ लाइट फील? एक किसी भी चैतन्य, किसी भी प्रकाश, किसी भी तेज को कैसा महसूस होता है? वाइटैलिटी, या ये वीर्यम हुआ, राइट? So the vitality is that emerges out of awareness. Please do see this vitality, that is the perfume. You know, a bud blossoms, becomes a flower, and there is the beauty, there is the fragrance. You do not sprinkle scent on it. किसी भी फूल पे क्या हम परफ्यूम मारते हैं और बोलते हैं अरे वाह इसका ये सुगंध है? नहीं। जब कोई फूल खिलता है, उसका सुगंध अपने आप उभरता है, अपने आप फैलता है। जिसको लेना है ले। वो ये नहीं कहता अरे तुम बहुत बुरे इंसान हो, यू नो,
You are a murderer, you are a rapist, you can't have my fragrance. And you are a saint and you do meditation, you are such a nice person, you will get my scent. नहीं, वो तो अपने आप में खिल जाता है, जिसको जो जो कोई भी उसको सूंघ सकता है. Not an issue, right? So there is the fragrance. You do not sprinkle some scent on it. It is the act of flowering. It is the movement of blossoming which causes the emergence of the scent contained in those petals of the flower. In the same way, बिल्कुल खिलते हुए फूल में से जैसे सुगंध अपने आप निकलता है, उसी तरह when the awareness blossoms, जब जब हमें सजगता आती है, जब हम खिलते हैं, the flower and flowers at every sensual psychological movement in your life, the awareness blossoms, flower, and the vitality emerges out of that flower. तो सजगता हमारा, हम फूल है, सजगता हमारा उमलना है, और जब जब हम उमलेंगे, जब जब हमारा when we blossom, when we open up, when we flower, तब तब क्या होगा? सुगंध आएगा, वीर्य होगा. The vitality will just be produced. Yeah, that is, vitality is the result, consequence. Okay, it has nothing to do with thought or effort. ये पॉइंट है. वीर्यम विचारों का काम नहीं. कुछ भी कर्म को योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, नहीं. यहाँ पे कोई प्रयास नहीं, किसी भी लेवल का, न शारीरिक, न मानसिक, न भावनिक, न बौद्धिक, कोई प्रयास नहीं है. नो एफर्ट. ब्यूटिफुल, इजंट इट? है ना? कितना सुंदर समझाया. Look, those of you who are acquainted with painting and drawing, you mix certain colors, two colors. That is only you are causing interaction of two colors and a third color generates. It is generated. दो रंगों को मिक्स कर दिया तो तीसरा रंग बन जाता है कि नहीं? हाँ या ना? या सो यू डू नॉट क्रिएट द थर्ड कलर. तो तीसरा रंग क्या तुमने बनाया? हम क्या कहते हैं? अरे देख मैंने कितना अच्छा कलर बनाया, मैंने ना ये वाला ये वाला ये वाला मिक्स कर दिया, और देख हु आर यू? कौन हो तुम कौन हो बनाने वाले? वो तो जो रंगों को तुमने मिक्स किया है, ये तो उनका परिणाम है. यस विजया, इतनी सुंदर, सो ब्यूटिफुल. ये उनका परिणाम है. ये इट इज their qualities which has resulted into a third color, right? You do not create the third color, but you have caused the interaction of say green and yellow, and the result is a third color. In the same way, लेकिन दो रंगों को मिक्स करने का निर्णय तुम्हारा, और तुमने तीसरा रंग उसमें से उसका परिणाम रूपी आ गया. उसी तरह there is an interaction of your conditioned limited being with other conditioned expressions of life, and the interaction of those conscious interaction of those energies generates what you call awareness, and that awareness has vitality. इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन शब्दों के साथ, ये विमला जी ने बोले हुए शब्दों के साथ हम जुड़ गए, और वो शब्दों को जब हमने जाना, उनका मतलब हमने समझा, तो क्या हुआ? क्या हुआ? सजगता आई. और हम जब सजग हो गए तो हमें क्या हुआ? देखो मेरा चेहरा कितना खिला हुआ है, देखो तुम्हारा चेहरा कितना खिला हुआ है. हम वीर्य से भर गए, हम वाइटल बन गए, हम जागरूक हो गए एकदम, जैसे कि वी ब्राइटन अप, राइट? सो दैट अवेयरनेस हैज वाइटलिटी. तो ये जो जो खुशी, या ये वो समझने के वजह से है, या ये जो वीर्य है जो महसूस हो रहा है, ये जो तेज है, वीर्य को तेज भी आयुर्वेदा में अगर आप देखोगे
तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और फाइनल प्रोडक्ट है वीर्य, जिसको ओजस बोला गया है। तो सप्त धातु का अंतिम एंड रिजल्ट इज वीर्य, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस, नॉलेज हैज नो वाइटल। सिर्फ ज्ञान में ये वीर्य नहीं, नॉलेज इज स्टैटिक। एक बार समझ गया फिर उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। राइट? एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया, डालो कचरे के डब्बे में, बिकॉज अब उसका कुछ काम नहीं है। It has become past tense, right? Knowledge is static, knowledge has no dynamism, but awareness has its own dynamism, and therefore the word वीर्यम, यहाँ गुरु शिष्य एक दूसरे को ज्ञान ही दे रहे, हम ज्ञान को बुरा नहीं बोलते, लेकिन वो ज्ञान की सजगता के वजह से वीर्यम है। वो ज्ञान के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है उसकी वजह से सजगता है, और सजगता का परिणाम वीर्य। दिस इंटरैक्शन विथ नॉलेज has brought about an awareness. Out of that awareness, the end result is viryam, vitality. In this context, after referring to pratibodha viditam hi amrutam, we have to understand the word viryam much more deeply than the strength or power that is the result of human efforts. I hope you are accompanying me. Atmana vindite viryam. Yes, I can say we, at least we all are. All right. The communion through awareness with the Brahman. अब सजगता आ गई है, वेदांत ने पटा दिया है, वेदांत ने हमको कन्विंस कर दिया, हम कन्विंस हो गए, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में कोई सवाल नहीं है। जितनी सर्टेनिटी से मैं जानती हूँ कि मैं आरती हूँ, उतनी सर्टेनिटी से मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। अब वो जो मैं जानती हूँ उसकी सजगता हर पल रहेगी, हर वक्त रहेगी। सो द कम्युनियन थ्रू अवेयरनेस विद द ब्रह्मन। अब उस सजगता के साथ जब मैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय, ब्रह्मांड, पर ब्रह्म, परमात्मा, किसी के भी साथ मैं जब जुड़ूंगी तो मैं उस सजगता के साथ जुड़ूंगी। एम आई राइट? क्योंकि मुझे, आई एम नॉट ओनली कन्विंस्ड ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड ऑफ तत्वमसि। तुम भी वही हो जो मैं हूं। ये जब मैं कन्विंस हो गई हूं तो मैं जिसके भी साथ जुड़ूंगी, मेरा जुड़ना कौन से स्तर पे होगा? औरत है इसलिए, टीचर है इसलिए, माँ है इसलिए नहीं, आत्मा का आत्मा से। सो आत्मिक जुड़ना वहां पे होगा। सो विथ so the communion through awareness with the Brahman, with the source and existential essence of your life, communion through awareness with the beingness of your life generates a vitality. अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, खुद के साथ रहो। तो ये खुद के साथ रहने से क्या होगा? खुद के साथ रहने से वीर्यम, हम वीर्य से भर जाएंगे। इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और एक बार कोई व्यक्ति चैतन्य में बस गया, एक बार कोई व्यक्ति वीर्य उसमें आ गया, हाँ, देखो वो जैसे मैं कहा कि वो गुलाब का फूल या कोई भी फूल, और उसका सुगंध एक बार फैलने लगा, फिर वहां पे रेपिस्ट आता है, या वहां पे मर्डरर आता है, या वहां पे साधु संत आता है, या कौन आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। It cannot be affected by anything in the world. No pleasure, no pain, no agony, no honor, no humiliation can increase or decrease it. कोई मान अपमान, कोई सुख दुख, कोई कोई भी चीज से ये जो हमारा सुगंध है, ये वीर्य जो है, ये न कम होगा न ज्यादा। वो चैतन्य न कम होगा ना ज्यादा। इट डजेंट बिकम ब्राइटर और डिमर। ऐसा भी नहीं होता है कि वो बहुत ब्राइट हो गया या बहुत डिम हो गया, वो भी नहीं होगा। सो आत्मना विंदिते वीर्यम। आ गया मंत्र ध्यान में?
Yeah, yeah. Welcome and hello, Anju, to your doggy. I forgot his name. I Or know, just see, her name is Aura. She is not allowing me to sit in one place. she She's also wants to my listen. daughter's, yeah, she also wants to listen. Okay, Aura, that's such a He's pretty Sorry Cookie's, for name. the he's disturbance. Cookie's younger sister. Oh, Yeah. really? No, no, not Oh, like that. Not acha, acha. biologically. Spiritually. He Yeah. sits and listens, so does Aura. Yes. Spiritually. Yeah, and they understand much more than we do. Spiritually. Yes. Yeah. How wonderful. No, All like, right. thanks. Yeah. So, But Atmana Vindite. continuously get irritated Anju, that are you I'm not trying? paying attention to him. Oh, Sorry, okay, sorry. okay. No, 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 no problem. I thought, yeah, there was a little bit of voice break, but I got you. Yes. So, आत्मन विंदिते वीर्यम. आ गई बात समझ में? हाँ, ये मंत्र समझ में आ गया? We will move onwards. Have knowledge. ज्ञान तो हम ले रहे हैं, लेना ही है. Have knowledge, but don't cling to the shell of words. शब्द है ना, खोखले है, खाली. हम ज्ञान देते हैं वो, लेकिन वो ज्ञान मिलते ही वो शब्द खाली हो गया, क्योंकि उसने हमारे सर में वो सब डाल दिया. सो जस्ट डोंट स्टे विथ एम्प्टी वर्ड्स. विद्यये अमृतत्वं विन्दते. Now the awareness which causes the communion, which generates the vitality, how does that awareness come? अब वो जो सजगता आई है, वो सजगता किस तरह से आई? जिसके वजह से वीर्य है, वो सजगता किस तरह से आई? Something most beautiful, most sublime, and the teacher is opening up layer by layer. विमला जी कह रही यहाँ पे ऋषि इतनी सुंदरता से, इतनी सहजता से एक 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 यू नो बारकाई कहते हैं ना हम लोग, सूक्ष्म में हमें एक एक लेयर खोल के दिखा रहे हैं. He has used the word vidyaya. विद्यय, विद्या is knowledge. Knowledge, verbalized knowledge. कौन सा ज्ञान? जो शब्दों से बनता है वो ज्ञान. Now, you cannot escape the necessity or the inevitability of acquiring knowledge once you are born in the human body. अब जब मनुष्य जन्म हमने ले ही लिया है, तो ज्ञान तो हमें लेना ही है, कंपलसरी है. हाँ? कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूँ, मेरी मम्मी कौन है, मेरा डैडी कौन है, मेरा घर कौन सा है, मेरा नाम क्या है. वहां से ज्ञान की शुरुआत जो हो जाती है, तो हम वहां जहाँ पे पहुंचे वहां तक का सारा ज्ञान. अगर मनुष्य जन्म है तो ज्ञान लेना अनिवार्य है. देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन टू इट. एक्सरसाइजिंग द ब्रेन इज एन इनएविटेबिलिटी. ये दिमाग तो चलाना ही है. बिना दिमाग तुम नहीं कह सकते कि इस जन्म में दिमाग नहीं चलाऊंगी. कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, बिकॉज उल्टा पर चलाओगे. कैसे भी पर चलाओगे. ऑलराइट. So exercising the brain is an inevitability. Exercising the senses, the sense organs, the internal senses and the outer sense organs is a necessity of life. मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं करूंगी हाथों से, मैं नहीं चलूंगी पैरों से. ये आप कह सकते हैं कि इस जिंदगी भर मैं नहीं करने वाली हूँ. हाँ, यू कैन नॉट डू इट, राइट? इट इज अ नेसेसिटी. कहना, सुनना, बोलना, सब कुछ चलते रहेगा. The movement of life, the act of living requires exercising the sensual energies and the cerebral energies. तो हम जी रहे हैं, इसका मतलब क्या बना? हम हमारे बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ कर रहे हैं. दिमाग, ब्रेन, मन, जो भी उसको जो भी लेवल पे आपको देखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों से हम जिंदगी जी रहे हैं. नाउ, with the help of words, the books available, the talks, the conferences, the seminars, through hearing, through reading, and through sensual experience, you derive knowledge. That's how we begin. तो शुरुआत
ज्ञान से ही होती है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, तब हमें कुछ कुछ अनुभव होते हैं। हर अनुभव में से हमें ज्ञान मिलता है। यही तो शुरुआत है। इस तरह से शुरुआत होती है। All are not born with that unique quality of inborn awareness. Some may be. अच्छा, कुछ कुछ आत्मा है जिनको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स अगर स्टडी करते हैं, तो देर आर ओल्ड सोल्स एंड देर आर सम सोल्स हु आर एंशियंट सोल्स। इसमें एज का कोई लेना देना नहीं। 1 साल का बच्चा भी ओल्ड सोल, एंशियंट सोल हो सकता है, और 100 साल का, 80 साल का व्यक्ति भी यंग सोल, बेबी सोल, टीनेज सोल, ऐसा ये आत्मा हो सकता है। राइट? सो ऑल द आर नॉट बोर्न विद द यूनिक। तो सबको इनबॉर्न ये क्वालिटी तो है नहीं, है ना, कि अवेयरनेस, बस मैं पैदा ही सजग हुई। ऐसे कितना जन बोल सकते हैं कि मैं पैदा ही सजग हुई थी? राइट? तो ये तो है नहीं। They are not freaks of nature, but it does happen that in some human beings there is the excellence or the brilliance of inborn awareness. कुछ कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं कि जो पैदाइशी सजग होते हैं, और ये क्षमता उनको जन्म से होती है। This is not the time and the place to go into the rationale of such human beings and how they are born with that. उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। But if you would allow me, पर अगर कहना हो तो मैं एक वाक्य कहूंगी, just one brief sentence, that when the parents are in the act of sexual interaction, they are fully in communion with each other, without fear, without assertiveness, without aggressiveness, without jealousy. When there is a relaxed sensitivity and the mating is gone through with a sense of satisfaction, relaxation, and yearning for communion, that does not remain a biological act only. That does not remain a psychological hunger, craving, or aggression and submission. वो मेरे पे जबरदस्ती कर रहा है और मैं सबमिट कर रही हूँ। इट डजंट रिमेन एट दैट लेवल। कहना वो ये चाहती है, जब कोई स्त्री पुरुष संभोग करते हैं, अगर वो पूरी तरह से तन मन भावनाओं से एक रूप है, अगर उनका वो संभोग बिल्कुल एक लेवल पे, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिसेप्टिव, ये स्टेट में अगर वो सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है, और विथ अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब हम संतुष्ट हैं, हम सुखी होते हैं, तो वो संतुष्ट बना, वो सुख, वो रिलैक्सेशन, और एक दूसरे को के साथ एक हो जाने की चाह, इस तरह से जब दो व्यक्ति के बीच में संभोग होता है, तब वो कोई सिर्फ दो शरीर का मिलना नहीं, तब वो दो आत्माओं का मिलन होता है। The divine aspect of sex and the sexual intercourse gets manifested. अब तो ये शिव शक्ति का मिलन बन, किसी ये एक, अगर मेरा ही कहूँ तो कोई आरती अम्मे का, या जो भी तुम्हारा हस्बैंड का या वाइफ का, ये नहीं है। It becomes a divine manifestation. Maybe one can go back to the genetical reasons and causes and antecedents upon 3 generations. But as I said, this is not the place, this is not the time. But please do not look upon the occurring of such exceptional human beings as a mystery or as a miracle. तो ऐसा संभोग में से जो बच्चा होता है, वो दिव्य ही होता है, और ये कोई जादू नहीं है। ये बहुत 100% एक आने का परिणाम है। दिस इज द रिजल्ट। या सो this is not do not look upon it as a mystery or as a miracle. It is also a fact, a rare fact, a unique fact. There is nothing in life of which you cannot find out the logic, the mathematics, the rational, the cause effect relationship. At least 80 to 90% you can find it out. यहाँ पे विमला जी हमें बोल रहे हैं कि जादू टोना
गुड मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये सब चीजें, ऐसा कुछ इन सब चीजों में नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी 100% लॉजिकल है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करते जा रहे हैं ना, और कन्विंस होते जा रहे हैं कि लाइफ इज नथिंग बट 100% लॉजिक। देर इज नो मैजिक, देर इज नो मिरेकल। इवन हम जो सिद्धियां जिसको हम बोलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नो मैजिक एंड नो मिरेकल। वो सिद्धियां भी है ना, ये भी लॉजिकल कंक्लूजन है, ये भी लॉजिकल परिणाम है। ततो द्वंद्वान अभिघातः। या तो ले लो प्राणायाम के आप परिणाम ले लो, या प्रत्याहार के परिणाम ले लो, किसी भी चीज के आप यम नियम के परिणाम ले लो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, कुछ भी ले लो, किसी भी चीज के परिणाम ले लो, परिणाम है, कॉज एंड इफेक्ट। कुछ हुआ, कुछ किसी के साथ जुड़ा, कुछ चीज कहीं गई, दो चीजों के बीच में जब एकता आती है तो कुछ ना कुछ तो बनना है। दो रंगों को मिक्स किया तो तीसरा बनना है। तो सिद्धियां भी बिल्कुल लॉजिकल है ना। अब विषय पे फिर से आते हैं। विद्यय अमृतम विंदते। सो it is our destiny to acquire knowledge with the help of words and sensual activities, movement of relationship at the level of the sense organs. Now that knowledge will become vidya. अगर मनुष्य पैदा हुए तो ज्ञान तो प्राप्त करना, विद्या तो लेनी ही। जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें विद्या मिल जाती है। इट विल बिकम विद्या। आई एम ट्रांसलेटिंग द वर्ड विद्या टेंटेटिवली बाय द वर्ड नॉलेज। अब विद्या का बिल्कुल इंग्लिश मीनिंग नॉलेज पूरी तरह नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे वो शब्द यूज कर लेती हूँ। लेकिन ये पूरी तरह विद्या का मतलब नहीं दर्शाता, पर ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट फाइंड एनी अदर वर्ड फॉर इट। तो यहाँ पे मैं विद्या को नॉलेज ना बोलूं तो क्या बोलूं, दूसरा शब्द नहीं मिल रहा, इसलिए नॉलेज ये शब्द यूज कर लूं। आई एम नॉट acquainted with your English language as much as I am acquainted with Sanskrit or 8 or 10 other Indian languages, and it's true। विमला जी बहुत अच्छा संस्कृत जानती थी और 8-10 भाषाएं उन्हें हमारी भारतीय भाषाएं उन्हें आती थी। इंग्लिश उतना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ऐसा अगर ये बोल रही है तो तेरा क्या होगा कालिया ऐसा हमको खुद को पूछना पड़ेगा। Okay, so that knowledge can be the source of understanding, at least at the cerebral level, intellectual level। तो ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये भौतिक स्तर पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ समझेगा। इफ यू डू नॉट क्लिंग टू द वर्ड्स, लेकिन शब्दों को पकड़ के नहीं रखना। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी जिंदगी में किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना, वरना चौकट बैठ जाएगी, अटक जाओगे, imprisoned। So do not cling to the words। If you do not cling to the pattern of expression or diction, but while you are acquiring knowledge, you try to penetrate the word। शब्दों को पकड़ के नहीं रखना है, शब्दों के अंदर, शब्दों के मतलब में जाना है। Go into the meaning of the word। शब्दार्थ में नहीं रहना, बुधार्थ में जाना है। वो शब्द के पीछे जो भाव है, वो शब्द का पीछे जो मतलब है, वो शब्द के पीछे जो भी कुछ है, उस तक हमने जाना है। ट्राई टू पेनिट्रेट द वर्ड्स एंड फील द मीनिंग। विद्या इज द मीनिंग फेल्ट बाय यू। शब्द से हमें ज्ञान मिलता है, जब उसका मतलब समझता है तब विद्या बनती। सो ये ज्ञान ऊपर ऊपर का शब्द है। Okay, it is just information, right? Lekin when the understanding comes, it gets converted into vidya। Let me call it intellectual understanding or verbal understanding। That vidya, that knowledge can tell you what is finite and what is infinite। ये जो विद्या है ना, ये हमें कहेगी सीमित क्या है और असीमित क्या है, लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या है।
अनंत क्या है और सीमित क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये शब्द का ज्ञान, इसकी अगर हमें विद्या मिल गई तो हम इसका फर्क जान सकेंगे। इट कैन इंट्रोड्यूस यू टू द फिनोमिना ऑफ द कांस्टेंट चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस अराउंड यू, विद इन यू। ज्ञान से ही पता चलता है कि अरे मैं तो किसी भी स्तर पे, चाहे मेरे सेल लेवल पे, शरीर के कण कण में, मन के कोने कुचे में, बुद्धि के स्तर पे, भावनिक स्तर पे, कहीं भी गतिहीन नहीं हूं। एवरीवेयर देयर इज मूवमेंट, कुछ ना कुछ हर पल, हर क्षण हो ही रहा है। हर चीज मेरे अंदर, हर चीज मूविंग है। आज मैं 1.5 घंटा बिना हिले बिल्कुल स्थिर मेडिटेशन में बैठी थी। क्या तुम्हारा हृदय रुका हुआ था? क्या फुफ्फुस हिल नहीं रहे थे? क्या पचन नहीं हो रहा था? क्या चयापचय क्रिया नहीं हो रही? However we feel that we are steady, there is a lot of movement going in and around us, right? Yeah, does that make sense? Yeah, so there is a constant change is taking place around you and within you. It can point out what is transitory and what is not transitory. तो जो not transitory है ये तो हमें नहीं मालूम। अगर शरीर में हलन चलन बंद हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मृत, मरे हुए हैं हम। या शैलजा, या That was I was supposed to say that dead. yeah, you're dead, right? So you, if there is no movement, you're dead. Huh? But if you know, but you, so you don't know what is, and मरने के बाद कैसे पता चले कि ये गतिहीन है? राइट? मुझे, मैं मरने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गतिहीन है? मैं किस चीज को जानती हूँ? मैं जानती हूँ गति को, यानी इति इति, ये भी वो भी। लेकिन ये भी है वो भी है, अगर मैं ये जानती हूं तो कुछ नहीं है, ये भी होगा ही ना। नेति नेति भी तो होगा। सो दैट इज व्हाई दिस होल वेदांत इज बेस्ड ऑन नेति नेति। ये नहीं वो नहीं, ये ब्रह्म क्या है, ये भी ब्रह्म नहीं, ये जो भी कुछ चीज को तुम है कहते हो वो ब्रह्म नहीं। इतना तो मुझे समझ जाएगा, right? So this is what the vidya, that knowledge can tell what is finite, what is infinite. It can introduce you to the phenomena of constant change that is taking place around you and within you. It can point out what is transitory and what is non-transitory. So the verbal knowledge in Sanskrit, the word is called Shabda Brahma. The aspect of divinity expressed in words, it is called as Shabda Brahma. तो शब्द में जो ब्रह्म बसा है उसको देखना है, शब्द के खालीपन से नीचे उतरना है और वो ब्रह्म को जानना है। अगर, और सबसे वो कौन सा शब्द है जो हमें ब्रह्म तक ले जा सकता है? हाँ, जो अनाहत है वो है ओम। दैट इज वन वर्ड, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। तो जो हमें ब्रह्म तक पहुंचा सकता है, इसलिए हम कहते हैं ओमकार का जप करो। जप आजप, कीप डूइंग द ओमकार का chanting, yeah, it will take you to the Brahman, शब्द ब्रह्म। क्लियर? हाँ, विद्या का रोल आ गया ध्यान में। नाउ ये अब हमने 4 चीजें हमने देखी। एक है ज्ञान, दूसरा है उस ज्ञान का मतलब समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझ गया तो सजग हो गए, तीसरा पॉइंट अवेयरनेस। और सजग हो गए तो अब जुड़ेंगे। नाउ देयर विल बी कम्युनियन। कम्युनियन इज नॉट जस्ट अ कॉन्टैक्ट, कम्युनियन इज from the soul to the soul at the energy level. It is coming of two things together, right? So that is communion. So knowledge,
understanding, awareness, and communion. So, vidyaye vindate amrutatvam. This knowledge, if you understand the meaning and do not cling to the shell of the word, the letters, then that causes awareness, and awareness causes communion, and communion causes immortality. ब्रह्म एक शब्द है. क्या समझा था पहली बार तुमने जब ब्रह्म सुना था? मैंने तो जब पहली बार ब्रह्म सुना था कुछ नहीं समझा था, और सालों साल उसका अभ्यास करते रहे, उस शब्द को दोहराते रहे. खुद को जब हम ब्रह्मास्मि जब बोलो पहली बार उपनिषदों के बारे में योगा क्लास में सुना, और इतने सालों पहले, और जब उस हम ब्रह्मास्मि हाँ होगा, कुछ नहीं समझा था, राइट. लेकिन जैसे उसका अभ्यास करते थे, जैसे उसको अलग अलग रीत से समझ गए, जैसे ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, योग सूत्रों का डिटेल में अभ्यास किया, भगवत गीता हमने पढ़ी, हमने दासबोध, सब कुछ, ये जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या होता गया, उस ब्रह्म ने एक हमारे दिमाग में, इवन इफ इट इज एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, वो एक मतलब, इट इज नॉट, अब हम उसको खाली शब्द नहीं बोल सकते, कुछ तो धागे दोरे हमारे हाथ में उसके आगे, कुछ तो हमने ग्रास्प कर लिया. सो दैट इज व्हाट, तो वो जो सजगता आई तो हम उससे जुड़े. और मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर ये सजगता और जुड़ना नहीं हुआ, आप कभी भी हम ब्रह्मास्मि का जप नहीं कर पाओ. कर लो ट्राई, क्या होगा पता है, भूल जाओगे करना. आपको, आप बोलोगे चलो आरती मैम को झूठा ठहराते हैं, हम ब्रह्मास्मि का जप करके ही दिखाते हैं. हाँ, करोगे एक, शायद तभी कुछ, मे बी यू नो अ फ्यू टाइम्स यू विल से, दूसरे दिन भूल जाओगे, अरे देखो करने का रह गया. बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग, द कनेक्टिंग टू द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट वर्ड हैज नॉट हैपेंड. सो देयर इज नो कम्युनियन, एंड व्हेन देयर इज नो कम्युनियन, then nothing is going to happen. But if वो गंध, तुमने सुगंध उसका ले लिया है, ब्रह्म उस शब्द का सुगंध, ज्ञान के माध्यम से सुगंध अगर तुमने ले लिया, सजगता में आ गए तो उस शब्द से जुड़ जाओगे, उस शब्द से जुड़ गए तो क्या हुआ, अमरत्व, that becomes permanent, that is never ever going to die. So that causes immortality. Therefore, Atmana Vindate Vidyam. From the beingness of your life, you derive the vitality, the glory, and the splendor of vitality, which gives you the passion to live. अब कभी मन में आएगा, बोर हो गए, मर जाते हैं, बोर हो गए, सबसे मरने, काश मैं मर जाती, ये सबसे वर्स्ट है, राइट. राइट, सबसे वर्स्ट है ना, बहुत सूक्ष्म है. और उसका ऑपोजिट, उसकी शुरुआत, बोर हो गए, ये उसकी शुरुआत, उसी का वो छोटा रूप. ये अभी नवजात है, अगर बोर हो गए मर जाओ, या इसलिए बच्चों को कहते हैं डोंट यूज दैट, बोर हो गए. सो what she is saying over here, Atmana Vindate Viryam, from the beingness of your life, you derive the vitality. तो ये वीर्य जो है, जिंदगी के साथ हम जुड़े हैं, और इसमें से वो तेज आता है, ये वाइटैलिटी आता है, ये वीर्यम आता है, और जीने की चाह. लेकिन कैसे, किस तरह से जीने की चाह निर्माण होती है, द पैशन टू लिव, जीना चाहते हैं, किस तरह से, नो पेन नो प्लेजर. हम जीना चाहते हैं 100%, लेकिन सुख दुख के झूले में नहीं बैठेंगे, उतर जाएंगे. नो सक्सेस नो डिफीट कैन अफेक्ट दैट वाइटैलिटी. कोई मान अपमान, कोई हमें तारीफ कर दे, कोई हमें अपमानित कर दे, कोई हमें, हमारा काम बने, सक्सेस मिले,
कोई हमें फेलियर, कुछ फर्क नहीं। हम तो बस मस्त राम सच्चिदानंद जी रहे। कोई लाइफ में आए जाए, कोई like I say, some come for a reason, some come for a season, and some pass away permanently. Whatever is happening, allow it to happen. Let it happen. When that happens, that passion of living, the वो जो जीना है, and knowledge, if properly acquired and properly used, can generate the awareness. उसमें से सजगता आती है। उस जीने में मतलब खुद के साथ जिएंगे तो सजगता में आएंगे, अवेयरनेस में आएंगे। यू सी द इनडायरेक्ट एंड द नेगेटिव यूज ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का इनडायरेक्ट यूज है। हमने, जैसे मैंने कहा, ज्ञान इति इति ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, क्या कहाँ ले जाएगा? नेति नेति तक ले जाएगा। नॉलेज इज नॉट टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। तो मैंने थोड़ी देर पहले डालो उसको डस्टबिन में बोला था ना, नहीं, दैट्स नॉट रियली ट्रू। नॉलेज इज नॉट टू बी, बट डोंट गेट अटैच टू द वर्ड्स। कौन सा नॉलेज डस्टबिन में डालने लायक होता है? जो कुछ काम का नहीं है, जिसका हम कुछ करते नहीं है। बहुत कुछ हमें पता है पर हम कुछ उसका करते नहीं है, तो वो जो नॉलेज है, वो विद्या जो है, वो वेस्ट हो जाती है, वीर्य में परिवर्तित नहीं, doesn't get converted into vidya, it goes waste. All right, now That will be just information. that will be just information, that is not vidya. Information, you will just put it in your memory bank and forget about it. All right, now the books, the scriptures, the talks, the tapes, or whatever you have through whichever media, it is how we relate to that. If we do not know how to relate, we may create a burden out of the knowledge. Just carry it in our memory, the word, the idea, the shells of theories and dogmas. कितने कुछ कुछ चीजों के का हम दिमाग में बस खाली डिब्बे जैसा भरते जाते हैं, कितना कुछ दिमाग में भर देते हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका। इट इज, अगर मैं आपको बोलूं न्यूट्रिशन पे आपका क्या मालूम, चलो न्यूट्रिशन भी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया, पानी के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब हमारे पानी ग्रहण करने के बारे में तो आप कितनी सारी मैगजीन्स में, न्यूट्रिशन शोज में, आयुर्वेदा में कहाँ कहाँ पड़ी हुई पानी के बारे में आप क्या क्या कहोगे? कोई कहेगा प्यास लगेगी तब पानी पीना है, कोई बोलेगा नहीं नहीं 3 से 5 लीटर पानी पीना है, कोई बोलेगा ऐसे पीना है, कोई, कितना कुछ है ना तुम्हारे पास, उनमें से क्या, कौन सा यूज कर रहे हो? क्या हो रहा है फिर? वो नॉलेज से क्या हुआ? मेमोरी बैंक में खाली फालतू जगह ऑक्यूपाइड है। ये लाइब्रेरी बन गई, लाइब्रेरी बस बनती जा रही है और उसका यूज नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट, just carry in our memory, it is up to us, and then it becomes a burden, भार हो जाता है उसका। एक्चुअली अल्टीमेटली देखो, हम बोलते हैं क्या ये, कभी बोलते हैं कि ये तेल हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जोड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने तेल कम करना है। ये तो मैं तेल लूं या ना लूं? अल्टीमेटली हम कहते हैं तेल लगाने गया, कुछ नहीं करना है, राइट? सो इट इज अ कंप्लीट वेस्ट. So it becomes a burden and a bondage out of knowledge, or to take the extract of knowledge. After all, what is honey? देखो मध क्या है? What is honey? It is the nectar extracted from flowers. फूलों में से जो अमृत निकाला है वही तो मध है ना? फूलों का अमृत, फूलों का जो अमृत है ये मध है. One must know how to extract it. That is all. कोई भी वर्कशॉप करो, कोई भी, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे, किताब पढ़ रहे, कोई भी बातें सुनो, लेकिन हर एक चीज में से अगर हम जैसे वो शिंपले में से मोती, एक एक शिंपले में से एक एक मोती निकलता है, अगर हर चीज में से हम मोती निकाले और सिर्फ मोती रखे, बाकी सब जाने दे, डिलीट मार दे, तो देखो हम कितने समृद्ध हो जाए. सोचो, अननेसेसरी दिमाग में
तो अगर मैंने इतनी डिग्रियां प्राप्त की है, इतने मेरे पास ज्ञान है, वो अहंकार में रह जाए, कुछ नहीं होने वाला उसका, राइट? सो वन मस्ट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट, दैट इज ऑल. सो नॉलेज कैन कॉज अंडरस्टैंडिंग. तो ज्ञान में से आएगा अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग कैन जनरेट अवेयरनेस. उस अंडरस्टैंडिंग में से आएगी अवेयरनेस, सजगता. अवेयरनेस कैन कॉज कम्युनियन. सजगता आ गई तो तुम जुड़ जाओगे. एंड कम्युनियन विद ब्रह्मन इज इमोर्टैलिटी. और ब्रह्मन के साथ जुड़ना यानी अमरत्व. अब कहो, जीते जी इसी जन्म में संसारी होते हुए क्या आपको अमरत्व प्राप्त हो सकता है? हाँ या नहीं? यस और नो? थम्स अप और थम्स डाउन? समथिंग. थम्स अप, राइट? एब्सोल्युटली हो सकता है. So beautifully, Rishi and Vimlaji, whatever, they are convincing us about this, right? Pratibodha viditam matam hi amrutatvam vindate atmana vindate viryam vidyaya amrutatvam vindate. If it has been possible for me to bring over to you some meaning of the mantra, please proceed with me to the next mantra. अगर हम थोड़ा भी आप अब समझ गए हो, ये बात समझ में आ गई है, तो हम आगे के मंत्र पर जाएंगे. लेकिन आई थिंक आगे का मंत्र हमारे पास 10 मिनट है, और आगे का मंत्र पे कल जाएंगे. और 10 मिनट क्या करेंगे? हमारी चाहती चीज मेडिटेशन, ध्यान करेंगे. ठीक है? शैल वी? या शैल वी मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स? वंडरफुल. चलो, चश्मे उतार के रख दो, पीठ सीधी करके आराम से बैठ जाओ. एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ो. Remove your glasses, your spectacles. Sit comfortably with your back straight. Keep your hands folded, your fingers intertwined. Gently close your eyes. आंखें धीरे से बंद कर लो. Take a long deep breath, and as you exhale, relax your body. पूरा शरीर ढीला छोड़ दो. दोनों पैरों के हर एक स्नायु को ढीला छोड़ना है. Relax each and every muscle of both your legs. Relax all the muscles of your hands. Relax your back. पीठ को रिलैक्स करो. एंड शोल्डर्स, कंधों को रिलैक्स करो. रिलैक्स योर एब्डोमेन एंड चेस्ट. छाती पे ढीला. नेक, shoulders relaxed. Relax all the small little muscles of your face, the corner of your eyes, the edges of your lips. Relax your jawline. Relax the earlobes. Relax your scalp. पूरा शरीर ढीला, relax. Just relax. Just relax. Take all your attention to your breath. पहले अपनी आंखें स्थिर कर लो. फोकस योर आईज. बंद आंखों के पीछे आंखें खोलकर बिल्कुल सामने देखो और एक पॉइंट पे आंखों को स्थिर कर.
Fix your eyes. Look at one point. Become steady. Now take all your attention to your breath. आंखें स्थिर, ध्यान सांसों पे. Simply look at your breath. सिर्फ हर सांस को देखना. Every breath that you are breathing in and breathing in. Breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. आंखें स्थिर, ध्यान सांसों पे. Simply observe the breath. अगर कोई विचार आ जाता है तो खुद को फिर से याद दिलाते हैं और आंखों को स्थिर करते हैं. If any thought distracts you, simply remind yourself that कुछ बस बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए हम ध्यान कर रहे हैं. आंखों को फिर से स्थिर कर दो. ध्यान फिर से अपनी सांसों पे ले जाओ. पूरा ध्यान को अपनी सांसों पे बांध दो. वही रुक जाओ. जैसे जैसे आप ध्यान सांसों पे रखते हैं आपको महसूस होगा और आपकी सांसें सूक्ष्म होती जा रही. आपका श्वास धीमा होता जा. और कुछ देर तक देखते रहोगे पूरे ध्यान से तो सांस महसूस ही नहीं होगी. आपकी सांस इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपको महसूस ही नहीं होगी. बस आप सिर्फ सांसों पे रुके हुए हो. कुछ नहीं. You are holding your attention steady on your breath, but you can feel your breath. It has become so subtle. For the next 1 minute, I will be completely quiet. I want you to stay with your breath. अगले 1 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी. बस सिर्फ 1 मिनट अपने सांसों के साथ रहिए. बिल्कुल मन को यहाँ कहीं नहीं जाने. सांसों पे बांध. 1 मिनट जब हो जाएगा
जैसे सांस ले लो, breathe in deeply, allow your breath to flow again. Rub both your hands together, दोनों हाथ एक दूसरे पे मलने हैं, चेहरे पे रखना है, इस ऊर्जा को अपने आंखों पे अपने चेहरे पे देना और धीरे से आंखें खोलनी।